Results are maths. Ranker's choice for JMains PYQ. Channel name Results are maths. Channel theme JMain Mathematics PYQ 2025 to 2021. Welcome to Results are Maths, the Ranker's Choice for JMain Maths PYQ. This challenge is not just about questions, it's about mastering the mindset of a JEE topper. Here, every PYQ tells a story of logic, precision, and conceptual clarity. With the corrections of over 8,000 JEE PYQs 2025 to 2021, we decode each questions to reveal the hidden concept, exam tricks, and pattern secrets that make the difference between an average scorer and a ranker. Why Results are Maths is the best maths challenge for achievements in YouTube. Complete PYQ coverage 2025 to 2021, 5,000 plus J questions with deep conceptual explanation. Number 2, topic wise, chapter wise, and year wise segmentation. Learn smart, not random. Number 3, rankers approach. Understand how top 100 rankers think in exam condition. Number 4, accuracy plus speed plus concept clarity, that is equal to the ultimate J triangle of success. Number 5, every PYQ explained from basics to brilliance. Learn how one concept transforms into multiple JE patterns. Number 6, interactive problem solving style. Step by step breakdown with exam focused logic. Number 7, shorts plus full length PYQ lectures, that is equal to learn in any format that suits your pace. Number 8, motivational is because maths is not just solving, it's a battle of mindset. Number 9, mentor with 22 years of expertise. Results are MSc Calcutta University, author at McGraw Hill Education. Number 10, trusted by thousands of aspirants across India for conceptual excellency and consistent results. Tagline ideas where PYQs create rankers. Every question counts, every concept matters. Results are maths, the final stop before JEE means. Your complete PYQ destinations for JEE 2026. Rankers don't practice more, they practice right. Welcome to Results are Maths, India's ultimate JEE Maths PYQ challenge. Here we solve every JEE questions from 25 to 21, not just for answer but for understanding. Because behind every PYQ lies a pattern, a strategy, and a secret of success. Join the revolution of rankers because at Results are Maths we don't just prepare for JEE, we dominate it. 5 extreme motivational dialogues on PYQ achievements. नंबर 1, हर PIQ एक दरवाज़ा है। रैंकर्स वही खोजते हैं जो सबसे मुश्किल लगता है। नंबर 2, टॉपर्स वही बनते हैं जो हर क्वेश्चंस को चैलेंज नहीं चांस समझते हैं। नंबर 3, मैथ्स एक आर्ट है और PIQ उसका बैटल फील्ड है। नंबर 4, रैंकर्स रटे नहीं, वो हर PIQ के अंदर विक्ट्री लिख देते हैं। नंबर 5, जे क्रैक करना मुश्किल नहीं अगर तुम्हारा PIQ लेवल अनबिटेबल हो जाए। Now this is a fantastic questions from Definite Integral Achievements 2022 में पूछा गया था। The value of 0 से 20 पाई mod of sin x plus mod of cos x का होल स्क्वायर dx is 4 ऑप्शंस इज हियर। एक्चुअली जब mod of sin x plus mod of cos x ये जो फंक्शन है इसका पीरियड होता है π/2 है, इसलिए 20 पाई को π/2 का फॉर्म में लिख लो। क्लियर, सो दैट मीन्स what will get 14 to π/2 clear, so mod sin x plus cos x का whole square, so that is sin x plus cos x का whole square, so this is 1 plus sin 2x clear। अभी इसका इंटीग्रेशन x एंड sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2 लिमिट 0 से π/2 clear, so this is π/2 एंड ये क्या होगा देखो, so that is what, ठीक है क्लियर। ये क्या होगा π/2 जब यहीं पे पुट करोगे, सो व्हाट विल गेट, सो 2 कैंसिल, दैट इज cos पाई, cos पाई तो -1 है, माइनस माइनस प्लस 1/2 और जब 0 पुट करोगे 1/2, सो दैट इज व्हाट क्लियर। हाफ को कॉमन ले लो, क्लियर 40/2, दिस इज पाई एंड दिस इज व्हाट, हाफ को जब कॉमन ले लोगे तो ये क्या बचेगा देखो 1 + 1, सो दैट इज 2, सो दैट इज 20 ऑफ क्लियर π+2 है। ये आपको समझना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। दिस इज़ अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है। आपको इसी टाइप का क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। Another fantastic questions from
क्लियर। डेफिनेट इंटीग्रल चेयरमैन्स 2022 में पूछा गया था। ये एक्चुअली क्या है, इंडक्शन फार्मूला है। सो इफ़ n इंटू 2n प्लस 1 0 से 1 1 माइनस एक्स टू द पावर n होल टू द पावर 2n dx, सो दैट इज इक्वल टू 1171 0 से 1 1 माइनस एक्स टू द पावर n 2n प्लस 1 dx, where n is natural number, then what will be the value of n है। सपोज मैंने इसको I1 कंसिडर कर लिया, इसको I2 कंसिडर कर लिया, तो I2 को क्लियर इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करो। 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n dx 0 से 1, एंड इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 2n प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n इंटू 2n। अभी फिर इसका डेरिवेटिव माइनस n एक्स टू द पावर n माइनस 1। अभी इसका इंटीग्रेशन तो x है। क्लियर। जब यहीं पे देखो 1 पुट करोगे 0, 0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा। क्लियर। सो दिस इज, इसको बाहर कर लो 2n प्लस 1, ठीक है। और ये क्या होगा 1 माइनस एक्स टू द पावर n 2n, और x को से इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस n एक्स टू द पावर n। 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लिया, उसका बाद इसका साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, देखो यही आपको समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। क्लियर। सो दिस 2n प्लस 1, सो दैट इज I2। ये क्या हो गया, सो दैट इज I1, ठीक है। ये भी I2 को इधर ट्रांसपोज कर लो, सो व्हाट विल गेट, सो यू हैव गॉट क्लियर। सो दिस इज 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 I2 इक्वल टू n इंटू 2n प्लस 1 इंटू I1, तो I1 बाई I2, ठीक है। क्लियर। I1 बाई I2 इसका नीचे आएगा, सो दैट मीन्स ये ऊपर रहेगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 बाई 2n स्क्वायर प्लस n, सो दैट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहीं से क्या पता चल रहा है, देखो 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इक्वल टू 177 है, ठीक है। सो दिस इज 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 1176 इक्वल टू 0। डी फार्मूला अप्लाई करो, डी फार्मूला का बाद देखो आपको ये मिलेगा। सो दैट इज़ क्लियर। ए 97 का क्लियर, इसका स्क्वायर रूट 97 है, सो दैट इज़ 96/4 माइनस 98/4, दिस इज़ 24, एंड सो दिस इज़ माइनस 24.5। एन क्या है, नेचुरल नंबर है, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है तो ये वैल्यू रिजेक्टेड है, तो एन का वैल्यू क्या है, सो दैट इज 24 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज़ 24। एक्चुअली जो मैथमेटिकल इंडक्शंस है, क्लियर, मैथमेटिकल इंडक्शन जेईई मेन में नहीं है, लेकिन ये सब आपको पढ़ लेना चाहिए। जेईई मेन एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रल चेयरमैन्स 22 में पूछा था। द वैल्यू ऑफ -3 to 101 साइन क्लियर पाई एक्स प्लस e टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर सब कॉस ऑफ 2 पाई एक्स, सो दैट इज इज dx है, ठीक है। सपोज मैंने इसको I1 कंसिडर कर लिया और इसको I2 कंसिडर कर लिया, तो I1 इज इक्वल टू दिस। देखो यहीं पे इसका पीरियड क्या है, नहीं इसका पीरियड तो 2 है ना। क्लियर। पाई एक्स, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज 2 पाई बाई पाई, सो दैट इज इक्वल टू 2 है। क्लियर। सो ये दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो रहा है, देखो। क्लियर। सो दिस so what you'll get, so that is 104 का आधा, so like this 0 से 2 sin pi x dx। तो एक बार क्या करना है, 0 से 1 और 1 से 2, 0 से 1 पे इसका वैल्यू 0 है, एंड 1 से 2 का बीच में देखो इसका वैल्यू क्या होगा, सो दैट इज -1, सो दैट इज व्हाट विल गेट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैव यू गॉट 52 into clear, so this is -2 + 1, so that is -52, and I2 का जो वैल्यू है क्लियर -3 to 101 e टू द पावर cos 2 pi x dx, तो इसका जो क्लियर इसका जो पीरियड है, सो 2 पाई बाई 2 पाई, सो दैट इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये जो 101 है, क्लियर, ये दोनों को ऐड कर दो 104 इज व्हाट 0 से 1 है, 0 से 1 जब हो गया, एक बार 0 से 1/4, 1/4 से 3/4 एंड 3/4 से 1 है, ठीक है। क्लियर। सो 0 से 1/4 में इसका वैल्यू क्लियर, ये जो वैल्यू है ये तो 1 है, तो से 1/4 माइनस 0 1/4 है। क्लियर। इसका इंटीग्रेशंस क्या होगा, सो दिस इज e टू द पावर -1 dx है ना। सो दिस 3/4 माइनस 1/4 1/2 है, ये तो 1 है, 1 माइनस 3/4, सो दैट इज 1/4। इसको सिंप्लीफाई करो, सो इट विल गेट 52 इंटू 1 + 1/e है, तो 52 + 52/e, तो I1 + I2 इज व्हाट, सो दैट इज -52 है, ए -52 है I2, क्लियर, एंड ए यहीं पे क्या 52, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट विल गेट अल्टीमेटली 52/e है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे जो ऑप्शन है देखो, दिस ऑप्शन इज द
राइट चॉइस है, यही आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इफ़ यू ट्राई देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। Now another fantastic questions from definite integral JMINS 2022 में पूछा था, the value of the integral 0 से 1 minus 8x square plus 6x minus 1 का greatest integral value dx, 4 options is there। सपोज मैंने ये कंसिडर किया दिस इज fx, ठीक है। fx का जो वैल्यू है सो दिस द क्लियर, जो एफ ऑफ जीरो जो लिमिट है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है -1 एंड एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या है -3 एंड वर्टेक्स क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x इक्वल टू -b/2 है, सो दैट इज 3/8 एट x इक्वल टू 3/8 एफ ऑफ 3/8 का वैल्यू क्या है, इस पर पुट कर दो x का जगह पे 3/8, सो यू हैव गॉट दिस। सो दैट मीन्स रेंज ऑफ ए फंक्शंस क्या होगा -3 से 1/8 है, क्योंकि एफ ऑफ 1 के लिए -3 था। अभी एफ एक्स इक्वल टू 0, जब एफ एक्स को 0 कर दिया तो x का वैल्यू क्या मिला ना 1/2 एंड 1/4 है, ये आपको मिला है। जब एफ एक्स इक्वल टू 0 है, डी फार्मूला अप्लाई किया, सो यू हैव गॉट 1/2 एंड 1/4 है। क्लियर। सो यहीं पे आपको समझना है, क्या समझना है, यहीं पे आपको समझना है, जब x का वैल्यू 0 से 1/4 तो एफ एक्स इज़ नेगेटिव है। फिर क्या है, जब 1/4 से 1/2 एफ एक्स पॉजिटिव है। फिर क्या है, जब 1/2 से 1 है एफ एक्स नेगेटिव है। सो दैट मीन्स 0 से 1/4 पे नेगेटिव है तो -1 से 0, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा -1। अभी इस पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है 0 से 1/8 है, ठीक है। इसका क्योंकि ना यहीं पे जो हम लोगों ने फाइंड किया था, सो दैट इज़ इसका जो रेंज है, रेंज इज़ -3 से 1/8 है, इसीलिए सो दिस, तो एफ इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है 0 है। हाफ से 1 -3 से दिस, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा -3 है। अभी व्हेन एफ एक्स का वैल्यू जब -1 है, सो दैट इज़, सो व्हाट विल गेट, सो दिस इज, देखो ये तो इसका साथ कैंसिल है, तो x का वैल्यू 0 एंड 3/4 एट x इक्वल टू 3/4 एफ एक्स का वैल्यू -1, तो x बिलोंग्स टू हाफ टू 3/4, सो लाइक दिस, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा ना -1 है। बट जब व्हेन एफ एक्स इक्वल टू -2 है, क्लियर, -2 है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो x का वैल्यू हमें क्या क्या मिला, सो लाइक दिस, ठीक है। क्लियर, 3 + √7/8 है यहीं पे, क्लियर। सो दिस इज एफ एक्स का जो वैल्यू है -2 है, तो x का जो वैल्यू है 3/4 से दिस, तो एफ एक्स का वैल्यू -2 से -1 का बीच में है, तो इसका फ्लोर वैल्यू क्या है -2 है। अभी 3 + √17/8 to 1, इस पर क्या है, देखो इसका जो वैल्यू है -3 से -2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है -3 है। सो आई का जो वैल्यू है, एक बार 0 से 1/4, 1/4 से 1/2, 1/2 से 3/4, 3/4 से दिस, ठीक है। ये जो सारे वैल्यूज़ है 0 से 1/4, 1/4 से 1/2, 1/2 से 1, ठीक है, एंड सो दिस इज़ 1/2 से 3/4 एंड सो क्लियर, सो दिस इज़ 3/4 से 3 + √17/8, सो लाइक दिस, ये आपको मिला है, ठीक है। अभी इसका बाद तो इसका जो इंटीग्रेशंस है, देखो ऑब्वियसली यू कैन इंटीग्रेट दिस फंक्शन, सो दैट इज़ आपको क्या इंटीग्रेट होगा, सो दिस इज़ -1/4, ये तो 0 है तो इसको लिखना नहीं, -3/4 एंड सो दिस इज़ +½ एंड यहीं पे क्या है -2 है, सो दिस माइनस दिस, ठीक है। यहीं पे क्या है -3 है, सो 1 माइनस ऑफ दिस, ठीक है। क्लियर, यही आपको समझना है। तो उसका बाद इसको क्या किया, देखो इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। क्लियर, सो दिस इज माइनस, ये तो -1 है, +½ एंड 1/2, क्लियर। सो दिस इज, इसका साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो 3/2, ठीक है, एंड सो दिस इज -3 एंड सो दिस इज ए क्या हो रहा है, देखो, सो दैट इज +3 इंटू दिस, -2 इंटू दिस, सो लाइक दिस। अभी यहीं पे फिर क्या हो रहा है, देखो, सो दिस इज -1 -3 -4 और ये क्या है 2 है, -4 + 2 -2 एंड सो लाइक दिस। सो दैट मीन्स क्या, व्हाट हैव यू गॉट, सो दिस इज √17 -13/8 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस थोड़ा डिफ़िकल्ट है एग्जाम हॉल में इस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। आप देखो, आप एक बार कोशिश करो, देखो यू कैन सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और नॉट, लेकिन एग्जाम टाइम में क्लियर एग्जामिनेशन हॉल में इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना आसान बात नहीं है।
अदर फैंटास्टिक क्वेश्चंस जेईई मेंस 2022 में पूछा था इफ बी ए डिफरेंशियल फंक्शंस ऑन 0 से पाई बाई 2 इफ cos x to 1 t square f of t dt equal to sin cube x plus cos x then the value of 1 by root 3 f dash 1 by root 3 is 4 options is there. ठीक है, ये फंक्शन है, इसको न्यूटन और लेबनिज रूल अप्लाई करो, इसके लिए तो जीरो हो जाएगा, इसलिए अपर लिमिट से जब वैल्यू फाइंड करो जीरो होगा, इसलिए बीच में माइनस साइन ए कॉस स्क्वायर एक्स एफ ऑफ कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन एक्स से डिवाइड कर दो, सो यू हैव गॉट दिस. ठीक है, अभी कॉस स्क्वायर एक्स से फिर डिवाइड करो 3 tan x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स. ठीक है, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करो एफ डैश कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स 3 सेक्स स्क्वायर एक्स एंड सो दिस इज व्हाट विल गेट माइनस 2 सेक्स स्क्वायर एक्स tan x है. सो साइन एक्स से क्लियर, यहीं पे आप क्या करोगे, सो दिस इज इससे डिवाइड कर दो. ठीक है, क्लियर. सो व्हाट विल गेट, इससे जब डिवाइड करोगे सेक्स स्क्वायर एक्स एंड सो दिस इज 3 सेक्स स्क्वायर, माइनस से डिवाइड कर दिया, यहीं पे 2 से क्यूब एक्स एंड सो लाइक दिस. ठीक है, अब यहीं पे क्या है देखो, एफ डैश 1 बाई रूट 3 का वैल्यू, कॉस एक्स का वैल्यू जब 1 बाई रूट 3 है, 1 बाई रूट 3 तो इसका वैल्यू रूट 2 है, ये वैल्यू यहीं पे पुट कर दो. सो व्हाट हैव यू गॉट, सो दैट इज 6 माइनस 9 बाई रूट 2 है, इसका जो वैल्यू है, सो दैट इज 6 माइनस 9 बाई रूट 2 है. सब माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लेकिन सिंपल है, न्यूटन एंड लेबनिज रूल, इफ़ यू नो न्यूटन एंड लेबनिज रूल देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 से 1 dx बाई 7 का पावर 1 बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू. ठीक है, क्लियर. सपोज दिस इज, इसको आई कंसीडर कर लिया, सो 0 से 1 dx बाई 7 टू द पावर 1 बाई एक्स, तो ये 1 बाई 7 टू द पावर 1 बाई एक्स है. तो यह 1 बाई 7 होल टू द पावर 1 बाई एक्स डी एक्स. सपोज 1 बाई 7 को k कंसीडर कर लिया, k टू द पावर 1 बाई एक्स. ठीक है, तो ये जो लिमिट है, ये लिमिट को एक बार देखना है, सो दैट इज़ हाफ से 1. ठीक है, फिर 1/3 से 1/2, फिर क्लियर 1/4 से 1/3. हाफ से 1 पे इसका वैल्यू क्या, हाफ से 1 पे इसका वैल्यू क्या होगा, हाफ से 1 पे. ठीक है, सो दैट इज़ इसकी, एंड 1/3 से 1/2 यहीं पे जो वैल्यू क्या होगा, सो दैट इज़ के स्क्वायर. 1/4 से 1/3 पे वैल्यू क्या होगा ना, सो दिस इज़ के क्यूब. उसका बाद इसको इंटीग्रेट कर दिया. ठीक है, क्लियर. इसको जब इंटीग्रेट करोगे ये वैल्यू मिलेगा. क्लियर, ए लिमिट है, हाफ 1 माइनस हाफ 1/2 माइनस 1/3 1/3 माइनस 1/4. अभी सारे के स्क्वायर के क्यूब लिख लिया एंड सो लाइक दिस. लॉग एक्स का एक्सपेंशन माइनस लॉग एक्स का एक्सपेंशन ये होता है, एंड सो 1/k माइनस लॉग एक्स एंड सो दैट इज़ माइनस एक्स. ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड करना है, सो दैट इज़, तो यहीं पे क्या है देखो, सो व्हाट विल फाइंड आउट हियर. ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 6/7 माइनस के का वैल्यू, हमें के का वैल्यू तो 1/7 है ना, के का वैल्यू यहीं पे 1/7 है, सो दैट मीन्स इज व्हाट 6/7 एंड वैल्यू को पुट कर दो. सो अल्टीमेटली व्हाट हैव यू गॉट ना, 1 + 6 लॉग ऑफ 6/7 है. ये क्वेश्चन लेकिन छोटा है लेकिन डिफ़िकल्ट है, इसे आपको समझने का कोशिश करना चाहिए. ठीक है, क्लियर. ये जो रेस्ट्रिक्शंस है, ये जो सारे रेस्ट्रिक्शंस है, ये इसे आप समझने का कोशिश करो. नाउ सो दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल से जेईई मेंस 2022 में क्वेश्चंस पूछा गया था. द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -2 से 2 मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स बाई ई टू दी पावर एक्स ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 डी एक्स. ठीक है, क्लियर. सो दैट मीन्स ये जो है वैल्यू है, सो हट विल गेट, ये दोनों को ऐड करो तो हट विल गेट 0, तो एक्स का जगह पे -x लिखो. यहीं पे ये सारे क्या है देखो, मॉडुलस है, तो ये इस पर कोई चेंज नहीं होगा, एक्स का जगह पे. सो लाइक दिस, हमें -2 से 2 का बीच में ये क्या होगा एक बार देख लो. सो दैट इज़ ई टू दी पावर, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा. सो लाइक दिस, अभी ये दोनों को ऐड कर दिया. ठीक है, क्लियर. ये दोनों को आप जब ऐड करोगे, सो हट विल गेट. ठीक, क्लियर. ये दोनों को जब ऐड करोगे, ये जो टर्म है ये तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये बचेगा कौन, x³ प्लस एक्स, ए x³ प्लस एक्स. सो दैट इज व्हाट
एक्स, ये तो मॉडुलस है, सो इवन फंक्शंस है, इसीलिए ट्वाइस ऑफ 0 से 2 कैंसिल हो गया. सो इट विल गेट, इसका इंटीग्रेशन क्या, x4/4 x²/2 लिमिट 0 से 2 16/4 एंड 4/2. सो दैट इज 4 + 2, सो दैट इज 6 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ समझने का कोशिश करो. यहीं पे क्लियर, फोर्थ प्रॉब्लम यहीं पे जो हम लोगों ने अप्लाई किया. सो लाइक दिस, ये दोनों को आपको ऐड करके देखना है. क्लियर, ए सो दिस, ठीक है. क्लियर, जब ये ऐड कर लोगे, सो दैट मीन्स ये क्या है, ये दोनों को ऐड करो, सो यू विल गेट दिस. ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बस नथिंग एल्स. यही आपको समझना है. Now another fantastic questions from JEE Mains 2022 from the chapter Definite Integral. The value of the integral 24/4 pi 0 से √2 minus x² dx by 2 plus x² under root of 4 plus x4. Clear? So my dear friends, सही से क्या है, x² से डिवाइड कर दो. ठीक है, क्लियर. x² से जब डिवाइड करोगे ये तो होगा, यहीं पे x से डिवाइड करो 2/x + x. x जब रूट के अंदर जाएगा x², सो लाइक दिस. अभी 2/x + x = t, तो इसका डेरिवेटिव ये हो जाता है. सो dt/t अंडर रूट ऑफ t² - 4, लिमिट को चेंज कर दिया. अभी t² - 4 = v² ले लो. सो t dt = v dt, ऊपर से t से मल्टीप्लाई कर दिया तो v dv दिस. तो ये तो कैंसिल हो गया, लिमिट को पुट कर दिया. अभी देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ऑब्वियसली यू कैन से. सो अभी 2 जब पुट करोगे π/4, इन्फिनिटी जब पुट करोगे -π/2 है. सो लाइक दिस, इसको सिंप्लीफाई करो. सो व्हाट विल गेट, सो दैट इज इक्वल टू 3 है. यही आपको समझना है. ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है. इफ़ यू प्रैक्टिस प्रॉपर्ली देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, क्लियर. ये क्वेश्चंस में क्या किया, पहले ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर दिया. इसको x² से डिवाइड करो, इसको x से, और इसका रूट का अंदर x जब जाएगा क्या होगा, x² होगा. x² से डिवाइड करना. JEE Mains 2022 में क्वेश्चंस पूछा गया था. f(x) = मैक्सिमम ऑफ mod of x + 1 mod of x + 2 mod of x + 5 देन द वैल्यू ऑफ -6 to 0 f(x) dx. यही है, ठीक है. ये जो सारे क्वेश्चंस ए, सो लाइक दिस. मैक्सिमम का क्या मतलब है, अपर पार्ट, ठीक है. तो -6 से -3 एंड -3 से 0. जब क्लियर, ये किसका है देखो ना, x + 1, ठीक है. एंड सो दिस इज, एक बार क्या, -6 से -3 और -3 से 0. तो ये मैक्सिमम क्या हो रहा है देखो. सो -3 से जब 0 है, -3 से 0, ठीक है. -3 से 0 मैक्सिमम ए पार्ट है, ठीक है. तो ये क्या होगा ना, ये x + 5 है, ये x + 5. उसके बाद इसको सिंपल इंटीग्रेट किया, नथिंग एल्स. सिंपल इंटीग्रेट करके वैल्यू को पुट कर दिया. सो यू हैव गॉट 21. इस पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. मेन जो है, इसको ग्राफ को आपको ड्रॉ करना है. क्लियर. 2 पार्ट्स में देखो, यहीं पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. -6 से -3, -3 से 0. जब -6 से 3 है, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम ए पार्ट है, ठीक है. जब -6 से -3 है, सो दैट मीन्स मैक्सिमम चाहिए. तो मैक्सिमम तो इधर गया, ठीक है. तो ये किसका साथ इन्वॉल्व है, माइनस. क्लियर. इसका साथ मॉडुलस ऑफ x + 1. अभी फिर -3 से 0, क्लियर. इस सब में मैक्सिमम ए पार्ट है. तो ये किसका साथ है ना, mod of x + 5 है. बस नथिंग एल्स. यही आपको यही चीज़ सीखना है. उसका बाद तो सिंपल इंटीग्रेट कर दिया, यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ 21. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. JEE Mains 2022 में डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चंस पूछा गया था. bn = 0 से π/2 cos² x by sin x dx, then b3 - b2 b4 - b3 b5 - b4 are in APG PHP and AGP है. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, bn + 1 - bm. सो लाइक दिस, ठीक है. ये ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो दैट इज़ 2 cos² x मीन्स क्या, 1 + cos 2x. वही अप्लाई किया. देखो यहीं पे 1 तो कैंसिल हो गया. सो दिस इज cos c - cos d 2 sin c + d/2 इंटू sin d - c/2. ये इसका साथ कैंसिल हो गया. अभी इसको इंटीग्रेट कर दिया. सो दैट इज वाई 2 तो कैंसिल हो गया. -cos 2n + 1 x by 2n + 1. जब cos π/2 होगा, सो ये तो 0 हो जाएगा, इसीलिए 1/2n + 1 है. अभी देखो n का जगह पे आप 2 लिखो, तो ये क्या होगा, 5 है. n का जगह पे 3 लिखो, यू व्हाट विल गेट, ठीक है. ये जो पार्ट है, सो दिस इज bn + 1 - bn है,
ठीक है। सो n का जगह पे 2 लिखो, यू विल गेट दिस। n का जगह पे 3 लिखो, b4 माइनस b3 तो 1/7। n का जगह पे 4 लिखो, b5 माइनस b4 1/9। देखो 5, 7 और 9 तो AP में है, तो उसका रेसिप्रोकल किस में होगा, GP में, HP में होगा। सो दिस इज HP है। यही आपको समझना है। ये सिंपल कैलकुलेशंस है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन को ही आपको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ठीक है, यही आपको समझना है।